We are honored to welcome Dr. Fahad Kaim as a distinguished speaker at the Geriatric Dentistry Virtual Summit. Dr. Kaim serves as an assistant professor in the Department of Oral and Maxillofacial Surgery at Sardar Begum Dental College and Hospital, Gandhara University, Peshawar. He holds the qualifications of BDS, FCPS, and MOMS RCSED, reflecting his extensive academic training and clinical expertise. With a strong background in oral and maxillofacial surgery, Dr. Khaim brings valuable insights into the complexities of dental care for the aging population. His session titled Exodontia in the Geriatric Patient: Risk Assessments, Medical Considerations, and Atraumatic Techniques will focus on evidence-based decision-making, management of medically compromised elderly patients, and importance of minimally traumatic extraction techniques to reduce complications and enhance post-operative outcomes. His contribution to this summit will provide clinicians with practical knowledge and refined surgical approaches essential for delivering safe, ethical, and patient-centered care in geriatric. Assalamu alaikum, Dr. Fahad. Walaikum salam, Dr. Hira. Thank you so much for the introduction and having me on this forum. So you may proceed. All right, thank you so much, Jazakallah. All right, Assalamu alaikum, everybody. I'm very honored for all the participants who have joined today. It's my first webinar with Pride, and I hope I can do justice to the faith that they have shown me, as well as you guys for showing up and taking time out of your schedules. So the topic that I was given for today is exodontia in the geriatric patient, risk assessment, medical considerations, and atraumatic techniques. So it's quite a vast topic, and I'll try my level best to condense it into this 20-25 minute framework that I can. Although it probably deserves its own seminar, but I think we should focus on the most practical things that you guys can take from this and hopefully start them in your clinical practices. So, when I was making this presentation, I came across this, if you would call it meme or a funny picture, and I think it really beautifully summarizes our usual approach towards managing geriatric patients because आई फील हमें एक नेचुरल सा या एक अननेचुरल सा डर होता है जब भी ऐसे पेशेंट्स हमारे पास क्लिनिक्स में आते हैं. I don't know it is whether it is because of the patient's old age or is it because of their medical conditions or is it because of their mental status or whatever it is. लेकिन हम डरते हैं जब भी एक जीरियाट्रिक पेशेंट को ट्रीट करना होता है. हम शायद इतना बोल्डली नहीं ट्रीट करते उनको जितना शायद हम एक नॉर्मल एक अडल्ट को या उसको ट्रीट करते होंगे. So as you can see, the person here is just saying that your bones are aching because you are old, and I can and ये एक orthopedic वाले के पास गया हुआ है ये patient, so he's referring him to an archaeologist. So I feel I hope कि आज की इस शॉर्ट टॉक के बाद आप लोग कुछ ना कुछ ये डर जो होगा थोड़ा आपसे कम हो जाएगा. We'll hopefully try to do that by introducing some evidence जो hopefully आपकी इस रिलेटेड जो एंजाइटी है उसको कम करेगा एंड यू विल फील मोर I would say confident in treating such patients in your clinics rather than just referring them to specialists or to hospitals. ठीक है? So that's our goal. I hope we are successful in that, inshallah. तो आज के जो हमारे वो हैं कंटेंट्स हैं विल बी टॉकिंग अबाउट बेसिकली द नीड फॉर एक्सोडोंशिया. आपको एक्सोडोंशिया करने की ज़रूरत क्या होती है, हाउ डू वी डू द रिस्क असेसमेंट फॉर सच पेशेंट्स, what should be our medical considerations, and finally some techniques which can optimize healing once you do go down the route for proceeding with extracting the teeth of such a patient.
So, when I was doing my research on this topic, I came across this article. This is Causes of Exodontia and its relationship with age in a tertiary care hospital. ये पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल जर्नल में ये स्टडी पब्लिश हुई थी. So as you can see, as you know, a geriatric patient is typically defined as 65 plus. तो last two headings को अगर आप देखें, so the most common reason why they are going for exodontia is because of a grossly carious tooth. या दांत फ्रैक्चर हो गया है या आपके पास कोई पुराने BDRs पड़े हुए हैं which may be symptomatic. Usually they are asymptomatic but prosthesis के लिए उनकी रिमूवल चाहिए होती है. इम्पैक्शंस आप बमुश्किल इन पेशेंट्स में देखेंगे. इस दौरानिए तक यूजली इन्होंने अपने वो थर्ड मोलर्स हैं या जो भी हैं वो उन्होंने हटाए होते हैं. रूट कनाल ट्रीटेड इश्यूज यूजुअली होते हैं पेशेंट्स में, ऑल्दो दिस स्टडी इज नॉट रियली रिफ्लेक्टिंग दैट, बट आप देख सकते हैं कि इसमें आपकी जीरियाट्रिक पेशेंट की जो मिकदार है वो भी वैसे भी कम है. अदर देन दैट प्रोस्टोडोंटिक इश्यूज डू प्रिडोमिनेट. पेशेंट को हो सकता है कोई भी मसला नहीं होगा, उससे ना कोई पेन होगा ना स्वेलिंग होगी, बट फिर भी वो आपके पास रेफर होके आया होगा कि भाई प्रोस्थो वालों ने भेजा हुआ है कि ये दांत निकाल दें, ये फंक्शनली हमारे डेंचर में हेल्प नहीं करेगा, तो लेट्स रिमूव दिस टूथ. सो ये एक स्टडी मुझे मिली थी. ऑल्दो एक देयर वाज अ मच बिगर स्टडी डन इन, आई बिलीव इट वाज फिनलैंड, जिसमें उन्होंने कोई 80,000 जीरियाट्रिक पेशेंट्स वो किए थे. और उस उनकी जो ये स्टडी थी उसमें दे फाउंड पेरियो रिलेटेड कॉजेज एज द मोस्ट prevalent reason for removal of teeth. तो एनी हाउ वी शुड फोकस ऑन व्हाट आर पॉपुलेशन डिमांड्स. ऑब्वियसली हर कंट्री की अपनी डायनामिक्स होती हैं. सो कमिंग टू द रिस्क असेसमेंट. रिस्क असेसमेंट जो है डॉक्टर आमना ने ऑलरेडी काफ़ी अच्छा वो किया, कवर किया इन टर्म्स ऑफ कैटेगरीज एंड एविडेंस. मैं आपको थोड़ा जनरल सा बताऊंगा बिकॉज आई फील दैट इज मोर समथिंग मोर प्रैक्टिकली यू कैन डू इन योर क्लिनिक्स. तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू गो विद द बेसिक्स. दिस इज समथिंग आई टेल माय स्टूडेंट्स कि भाई आप जितना भी हिस्ट्री से भागो ना, हिस्ट्री आपकी जान नहीं छोड़ेगी. तो हिस्ट्री, गेटिंग अ गुड हिस्ट्री इज वेरी क्रिटिकल बिकॉज एक आपके पास एक कॉमन कंडीशन है जो आपके पास जीरियाट्रिक पेशेंट्स में आती हैं, दैट इज ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया. एंड ये पेशेंट जब भी आप देखोगे यू विल फाइंड देम इन बेचारों के उन्होंने मल्टीपल क्वाड्रेंट्स को एम्प्टी किया होता है. समटाइम्स देयर इवन ईडेंचुलिस, और फिर वो डायग्नोज हो जाते हैं कि यार ये तो दान में मसला था ही नहीं, तो और ये तो एक्चुअली ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया था. सो diagnosing whether the problem is actually odontogenic or not, तो that is very key. और ये आप हिस्ट्री से ही शुरू करोगे, starting with your very basic Socrates का जो acronym जो हम पढ़ चुके हैं in our medical schools, but इसको हम for some reason I don't know why हम इसको implement क्यों नहीं करते, but this is key. You have to learn how to use Socrates, which is site, onset, character, radiation, associated symptoms, time duration, exacerbating and relieving factors, and severity. तो ये हमने कोशिश करनी होगी कि जो भी पेशेंट हमारे पास पेन के साथ आए ये आप उस पर अप्लाई करें. सो यू कैन टेक अ थॉरो हिस्ट्री एंड actually diagnose whether the problem is a tooth related problem or is it not. सेकेंडली रिस्क असेसमेंट जो है प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ कोमॉर्बिड्स. ज़रूरी नहीं है कि एक जीरियाट्रिक पेशेंट आपके पास आए कोमॉर्बिड्स खामखा होंगे. सो हिस्ट्री उनसे लेना. याद रखें कि हमारे पेशेंट्स फॉर वट एवर रीज़न, यहाँ एक मे बी शायद इट्स मे बी अ पाकिस्तानी माइंडसेट है या जो भी है, कि पेशेंट्स आपसे अपनी बीमारियां छुपाते हैं बिकॉज दे फील कि अगर इफ दे टेल यू कि भाई मैं डायबिटिक हूँ या मैं कार्डियक पेशेंट हूँ या मैं जो हूँ, तो डॉक्टर मेरा काम नहीं करेगा, वो मुझसे जान छुड़ाएगा. सो ऑलवेज टेक अ स्पेसिफिक नेम्ड हिस्ट्री फॉर सच प्रॉब्लम्स. इज व्हाट आई टीच माय स्टूडेंट्स. आई होप आप लोग भी करोगे कि जो कॉमन मेडिकल कंडीशंस हैं जिस जो भी एज ग्रुप में भी हों उनको आप बाय नेम एक्सक्लूड किया करें. एंड यूजुअल वे जिसमें अक्सर पेशेंट्स खुद अपने आप को फंसा देते हैं, इफ दे टेल यू कि भाई नहीं मुझे कोई मसला नहीं है, एंड आप उनसे ये पूछें कि जी आप कोई दवाइयाँ लेते हैं या नहीं लेते, डू यू टेक एनी मेडिकेशंस और नॉट, तो वहाँ उनके मुंह से अक्सर बात स्लिप हो जाती है कि जी जी मैं तो दवाइयाँ लेता हूँ. तो देन यू शुड ऑब्वियसली प्रोब एंड गो फर्दर एंड आस्क देम अच्छा जी आप किस चीज़ के लिए दवाइयाँ लेते हैं. तो देन दे माइट टेल यू थिंग्स विच नॉर्मली आपके कॉमन मेडिकल कंडीशन में शायद वो बात कवर नहीं होती. सो ये पूछना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपको पता हो कि आपको उनकी मैनेजमेंट प्लान में मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है या नहीं है. So like I said, medications which can be for comorbids या उनके जो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं
उनको वो कहीं आपकी डायग्नोसिस को अफेक्ट तो नहीं कर रहे। लाइक ऑल ऑफ यू नो, मेजॉरिटी ऑफ योर एंटी हाइपरटेंसिव्स जो होते हैं देर एसोसिएटेड विद लिग्नोइड रिएक्शंस। तो ऐसे पेशेंट जिनको आप शायद लाइकन प्लानस के साथ डायग्नोज कर रहे थे, दे आर एक्चुअली हैविंग अ लिग्नोइड ड्रग रिएक्शन विच इज़ अ पोटेंशियली रिवर्सिबल कंडीशन। इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ योर एंटी हाइपरटेंसिव जो होते हैं दे कॉज जीरोस्टोमिया। तो समटाइम्स पेशेंट उससे भी तंग होता है। तो हो सकता है आप उनको वो स्लाइवा, आर्टिफिशियल स्लाइवा या फ्रीक्वेंट सिप्स ऑफ वाटर वगैरह ये सजेस्ट कर रहे होगे, बट एक्चुअली प्रॉब्लम वुड बी बिकॉज ऑफ देयर मेडिकेशन। सो इन चीज़ों को चेंज करना जो है, दिस इज अगेन अ रिवर्सिबल ट्रीटमेंट फॉर, दिस इज अ ट्रीटमेंट फॉर विच मेक्स योर जीरोस्टोमिया रिवर्सिबल। तो मेडिकेशन की हिस्ट्री लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ऑब्वियसली आपको पता है कि कार्डियक पेशेंट है, मोस्ट प्रॉब्ली वो ही और शी वुड बी ऑन एंटीकोगुलेंट्स। इसी तरह अगर उसका कोई स्ट्रोक या कोई और सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है, हो सकता है एंटीकोगुलेंट पे होगा। तो ये चीज़ें, दीज आर ऑल थिंग्स विच कैन पोटेंशियली इंट्रोड्यूस कॉम्प्लिकेशंस इनटू योर ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद हिस्ट्री जब आपकी हो गई तो देन अगेन नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, दैट इज योर एग्जामिनेशन। एंड एक चीज आई वुड लाइक टू स्ट्रेस, आई होप आप सब करेंगे, एंड दैट इज यूजिंग डायग्नोस्टिक ब्लॉक्स। डायग्नोस्टिक ब्लॉक्स इज नथिंग एल्स देन यूजिंग लोकल एनेस्थीसिया टू डिटरमिन कि जो पेशेंट का पेन है ये वाकई इस दांत की वजह से है या नहीं है, ये या ये कोई रेफर्ड पेन है। तो गिविंग इंट्रालिगामेंटल इंजेक्शंस या गिविंग इन्फिल्ट्रेशन टू टीथ इन द मैक्सिलरी आर्च और मैंडिबल में, आई नो इन्फिल्ट्रेशन से एक सिंगल टूथ को ब्लॉक करना मुश्किल होता है, तो वहाँ शायद आपकी इंटरलिगामेंटल टेक्निक ज़्यादा काम आए। तो एक्चुअली डिटर्मिन तो करें कि भाई ये जो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं आप उनको सिम्टम्स को गायब कर सकते हो, यानी कैन यू कंफर्म वेदर दिस प्रॉब्लम इज इन दिस टूथ और नॉट। तो इस चीज़ की जो है कोशिश प्लीज किया करें। इट्स अ वेरी रिवर्सिबल इजी कंडीशन ऑफ गिविंग डायग्नोस्टिक ब्लॉक एंड कैन हेल्प यू अ लॉट in terms of confirming what your diagnosis could be. इसके बाद रेडियोग्राफ्स आर नॉट एन एक्सेसरी बट एसेंशियल। हम समझते हैं कि हम अपने पेशेंट को एक्सरे नहीं कर रहे, कि अगर हम हॉस्पिटल्स में हैं तो यार उनको नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा, या दिल इनको व्हील चेयर में अब कौन लेके जाएगा, इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। बट इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। इट्स बेटर आपके क्लिनिक्स में या वेर एवर यू आर, यू हैव इजी एक्सेस टू एटलीस्ट पेरिफेरल एक्सरेज, ताकि आप अपनी फाइंडिंग्स कंफर्म कर सको। यू शुड नो कि इस दांत के साथ नीचे कहीं ग्रैनुलोमा, कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है। क्योंकि पेशेंट की कन्वीनियंस का सोच के आप उनकी कहीं मैल ट्रीटमेंट या इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट ना करो। तो रेडियोग्राफ्स प्लीज हमेशा किया करें पेशेंट के, टू अगेन कंफर्म। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए क्यों बार बार कंफर्म को वो कर रहा हूँ, मेरे एक इलेक्टिव रोटेशंस के सुपरवाइजर थे ईएनटी में, जब हमारी थी ट्रेनिंग हो रही थी, तो उसमें वो एक बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल करते थे कि आपकी हिस्ट्री, आपकी एग्जामिनेशन, आपके एक्सरेज, इन सब में अलाइनमेंट होनी चाहिए। मतलब दे शुड ऑल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेम थिंग, तब जाके यू कैन डायग्नोज द पेशेंट प्रॉपरली। तो अगर आप ये सारी चीजें नहीं करोगे, और जब नहीं करोगे तो फिर अलाइनमेंट कहाँ से आएगी? जब अलाइनमेंट नहीं आएगी तो देन यू कैन नॉट बी श्योर कि वट एवर ट्रीटमेंट यू आर डूइंग और गिविंग, दैट विल एक्चुअली alleviate द पेशेंट्स प्रॉब्लम और नॉट। लास्टली, कंसल्टेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सब चीजें खुद से मत किया करें, इवन इफ यू नो, आपके पास बेतहाशा नॉलेज हो या आपके पास फोटोग्राफिक मेमोरी हो एंड यू रिमेंबर एवरीथिंग, बट स्टिल कंसल्टेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। डजेंट मैटर आप स्पेशलिस्ट हो, जनरल डेंटिस्ट हो, लेकिन ऑलवेज ट्राई टू टेक ओपिनियंस फ्रॉम फेलो डेंटिस्ट, और स्पेशली रिगार्डिंग मेडिकल हिस्ट्री बाकी लोगों से भी, जो उनके फिजिशियंस हैं या स्पेशलिस्ट हैं, उनसे खामखा कंसल्टेशंस लिया करें, ताकि आप अपने लिए एक लीगली सेफ भी हो जाओ, एंड दूसरा यू कैन एक्चुअली परफॉर्म ट्रीटमेंट इन अ सेफ मैनर। तो रिस्क असेसमेंट, इफ यू फॉलो ऑल ऑफ दीज स्टेप्स यू कैन ग्रेटली मिनिमाइज द रिस्क ऑफ हैविंग treatment failure, treatment complication, or even decrease the incidence of having a medical emergency happening inside your clinic or office. तो कौन सी मेडिकल कंडीशंस हैं जो ज़्यादा प्रेवलेंट होती हैं हमारे मुल्क में? ये एक रिसर्च मुझे मिली फ्रॉम द पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। उन्होंने ये 2019 में एक स्टडी की थी। दिस शोड ए प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल बर्डन ऑफ फेटल एंड नॉन फेटल डिजीजेस। मोस्ट कॉमनली पांच हमारे मुल्क में पाए गए। अनसरप्राइजिंगली कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस आर वेरी मच ऑन द टॉप, फॉलोड बाय कैंसर्स, फिर क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेज लाइक सीओपीडी, एस्थमा वगैरह,
डायबिटीज एंड किडनी डिजीज बल्कि उससे भी थोड़े ज़्यादा कॉमन है, एंड लास्टली योर डाइजेस्टिव इश्यूज। सो इनमें ऑब्वियसली हर एक को तो मैं इंडिविजुअली कवर नहीं कर सकता, बट इनमें दो कंडीशंस के ऊपर मैं ज़्यादा बात करूंगा क्योंकि वो ज़्यादा कॉमन है और उसके रिगार्डिंग मिसकंसेप्शंस बहुत हैं, विच आई होप आई कैन alleviate for you guys today. अच्छा, आई एम सॉरी, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दीज मुझे चैट्स में कोई दो तीन क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। लेट मी सी, अगर कोई क्वेश्चन है आई ट्राई टू आंसर देम नाउ, इफ नॉट वी कैन। अच्छा नहीं, बस प्राइड वन की तरफ है, चलें, गुड इनफ। अच्छा, सो पहले आते हैं डायबिटीज की तरफ। तो डायबिटीज में सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज कि वी शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्टिव एंड इमरजेंसी केयर। ठीक है, दो सिनारियोज हैं। अब आपके पास एक पेशेंट है हु हैज कम टू यू विद एन एसिम्प्टोमेटिक बीडीआर जिसकी रिमूवल करनी है। पेशेंट हैज नो पेन, नो स्वेलिंग एसोसिएटेड विद इट, सिर्फ प्रोस्तो वालों ने भेजा हुआ है कि यार ये एक बीडीआर हटा दो तक, ताकि हम एक अच्छी प्रोसेस बना सकें। एक सिनारियो आपके पास ये है। दूसरा सिनारियो आपके पास ये है कि एक पेशेंट है आपके पास, सिवियर पेन में आया हुआ है, अक्यूट एपिकल एब्सेस है एंड डायबिटिक है अगेन, बट वो अब इतना सिवियर पेन में है कि वो बस बिल्कुल आपे से बाहर हो रहा है बेचारा। ठीक है, हम क्या करते हैं, दोनों को हम आरबीएस या फास्टिंग ब्लड शुगर एडवाइस कर देंगे, या HbA1c जो है हम एडवाइस कर देंगे, एंड वी विल ट्रीट बोथ ऑफ देम द सेम। ठीक है, तो प्लीज वी नीड टू डिफरेंट बी एबल टू डिफरेंशिएट कि यार किस बंदे का हम काम कर सकते हैं, किसका हमें काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो द प्रॉब्लम इज कि हम इन दोनों में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, और हमने बस अपने उस्तादों से एक ये 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की वैल्यू रटी हुई है कि यार 200 से शुगर कम होना चाहिए या 180 से कम शुगर कम होना चाहिए, और तभी काम होगा, वरना अदरवाइज नहीं होगा। तो आई होप बाय कमिंग टू द एंड ऑफ एटलीस्ट दिस स्लाइड मैं ये एक डिफरेंशिएशन आपको जो है वो कर सकूंगा। हम पता नहीं क्यों डरते हैं कि ये पेशेंट चला जाएगा उसमें बिटवीन इन हाइपो में चला जाएगा या हाइपरग्लाइसीमिया में चला जाएगा। तो यू वी नीड टू नो कि इन दोनों में से एक्चुअली सीरियस जो है ज्यादा बीमारी वो कौन सी है। पेशेंट इवन अगर पुअरली कंट्रोल डायबिटिक है, तो ऐसे पेशेंट में आपको इट्स बेटर कि वो हाइपरग्लाइसीमिया के स्टेट में हो रादर के हाइपो में चले जाए, क्योंकि याद रखें आपका जो दिमाग है, ब्रेन है, इट थ्राइव्स, इट लिव्स ऑन ग्लूकोज। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई तो हाइपोग्लाइसीमिया, याद रखें, इज फार मोर डेंजरस टू यू, टू योर पेशेंट एज कंपेयर टू हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, सो इट्स बेटर कि आपका पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट में चला जाए एज कंपेयर टू कि वो कहीं ना हाइपो में चला जाए। ठीक है ना। तो अब बातें तो सारी वैल्यूज उसकी हो रही हैं, तो अब इसके ऊपर हमारे पास एविडेंस बेस्ड वैल्यूज क्या हैं। याद रखें कि आप ये जो 200 मिलीग्राम की वैल्यू हमने सुनी हुई है, ये बेसिकली हमने इंपोर्ट की हुई है जनरल सर्जरी वालों से। उनके वूंड्स जो हैं, याद रखें, उनके वूंड्स आर फार मोर एक्सटेंसिव, बड़े होते हैं, एंड उस एरिया का जो फ्लोरा है दैट इज ऑब्वियसली डिफरेंट। तो उन्होंने 180 के ऊपर अपना कट ऑफ रखा हुआ है, एंड वो जायज कट ऑफ है क्योंकि 180 के ऊपर उनके वूंड्स में इन्फेक्शन और उसके रिस्क जो होता था वो ज्यादा होता था। तो हमारे एविडेंस बेस्ड वैल्यूज क्या है, क्योंकि ओरल कैविटी में याद रखें आपका माइक्रोफ्लोरा डिफरेंट है, आपका वूंड का साइज डिफरेंट है, and you also have something very powerful which is saliva, so which through its mechanical action of cleaning as well as having IgA immunoglobulin A antibodies, it इस एरिया में वो बैक्टीरियल एडहेरेंस वगैरह टू द म्यूकोजल सरफेस ऑफ योर ओरल कैविटी वो नहीं छोड़ता। ठीक है, सो आई केम अक्रॉस टू आर्टिकल्स जिनकी फाइंडिंग्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यू कैन फाइंड दीज, इनके एब्स्ट्रैक्ट्स एटलीस्ट आप पढ़ सकते हो। इफ यू गाइज वांट द फुल टेक्स्ट तो मुझे प्राइड वाले बेशक मैसेज कर लें, आई विल शेयर देम, शेयर दीज आर्टिकल्स विद देम। वो आप लोगों का अगर कोई पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप है तो उसमें मैं शेयर कर दूंगा। सो द फर्स्ट आर्टिकल वाज अ रिव्यू आर्टिकल, एंड सिंस मेरा इंटरेस्ट भी ज्यादा हाइपरग्लाइसीमिया में है कि भाई हाउ फार कैन वी पुश दिस आरबीएस वैल्यू अपस्टेयर्स, तो इस पे एक आर्टिकल मुझे मिला विच वाज मैनेजमेंट ऑफ एन इमरजेंसी टूथ एक्सट्रैक्शन इन डायबिटिक पेशेंट्स ऑन द डेंटल चेयर। तो इन्होंने इन देयर रिव्यू आर्टिकल इन्होंने 180 की कट ऑफ वैल्यू रखी फॉर इलेक्टिव एक्सट्रैक्शंस के लिए। ठीक है,
एंड फॉर इमरजेंसी टूथ एक्सट्रैक्शन, लाइक पेशेंट है आपके पास, सिवियर पेन में है, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह, एंड ही जस्ट ही नीड्स टू हैव ट्रीटमेंट राइट नाउ, बेशक वो एंडो हो, एक्सट्रैक्शन हो, जो भी हो, ही नीड्स ट्रीटमेंट। तो उन्होंने अपने हिसाब से उसमें बेस्ड ऑन द आर्टिकल्स दैट दे फॉलोड, तो उसमें उन्होंने 234 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की जो वैल्यू है वो उन्होंने रखी कि इससे आपका शुगर का लेवल कम होना चाहिए, तो तब यू शुड गो, तब आप इमरजेंसी केसेस में आप एक्सट्रैक्शन वगैरह जो है आप कर सकते हो। ठीक है, सो 180 फॉर इलेक्टिव एंड 234 से कम जो है दैट इज फॉर योर इमरजेंसी केसेस। स्टिल जब भी मैं इसको रिसर्च कर तो आई केम अक्रॉस another article which is obviously not a review article, तो इसकी स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस को आप इससे कम रखें, बट अगेन बात वही आती है कि हाउ फार कैन वी पुश दिस। सो उन्होंने एक स्टडी हुई थी, दे डिड टू ग्रुप कंपैरिजन था, इन्होंने रिलेशनशिप देखी ऑफ ग्लाइसीमिक कंट्रोल टू द आउटकम्स ऑफ डेंटल एक्सट्रैक्शंस। तो इन पोरली कंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स फॉर इमरजेंसी केसेस, अगेन मैं इमरजेंसी केसेस की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्टिव एक्सट्रैक्शंस। इमरजेंसी केसेस में उन्होंने इवन ऐसी केसेस में एक्सट्रैक्शंस की जिनका पेशेंट्स का शुगर लेवल वाज बिटवीन 200 टू 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, सो मतलब आपके पास इन्होंने 300 तक भी इन्होंने चेक किया, उन्होंने एक्सट्रैक्शंस की, एंड ऐसे पेशेंट्स को उन्होंने फॉलो किया फॉर अप टू 2 वीक्स टू चेक कि इनकी वूंड हीलिंग जो है वाकई में हो रही है या नहीं हो रही। दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टडीज विच वाज डन जिसमें वो वूंड की एपिथेलाइजेशन को चेक कर रहे हैं, एंड दे फाउंड कि जो कंट्रोल डायबिटिक्स हैं एंड जो पूरली कंट्रोल्ड हैं वो दोनों आपके जो हैं उनमें 2 वीक के फॉलोअप में उसमें कुछ फर्क नहीं था ऑन द रेट ऑफ एपिथेलाइजेशन ऑफ द डेंटल सॉकेट। ठीक है, सो आई एम नॉट आपको जस्टिफाइंग, ये मैं नहीं कर रहा कि आप हर इलेक्टिव एक्सट्रैक्शन जो 300 में है उसको भी करें, नहीं। आप डिफरेंशिएट करें कि आपका कौन सा केस इलेक्टिव में आ रहा है, कौन सा इमरजेंसी में आ रहा है। लाइक आपके पास फेशियल स्पेस इन्फेक्शन का पेशेंट आ गया, उसमें द बेस्ट थिंग टू डू, और ये आपकी बुक्स में भी लिखी है, यू कैन ओपन कंटेम्प्रेरी ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, यू विल फाइंड इट इन दिस, दैट द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर सच इन्फेक्शन इज टू रिमूव द कॉज। हम एंटीबायोटिक्स ठोस रहे होते हैं मरीज के ऊपर, एंड देन वी आर वंडरिंग व्हाई द पेशेंट इजंट गेटिंग बेटर, इट्स बिकॉज वी आर नॉट एड्रेसिंग द कॉज। कॉज को एड्रेस करें, पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह खुद ठीक हो जाएगा। तो एनी हाउ एविडेंस पे अगर आप जा रहे हैं तो फॉर इमरजेंसी केसेस यू कैन पुश इट टिल 300 milligram per deciliter. So this was about diabetes. The second most common one is your cardiovascular diseases. तो cardiovascular disease में again हमें इस चीज में फर्क करना होगा कि ये एक्सट्रैक्शन जो है इलेक्टिव है या इमरजेंसी केस है। हमने बस वो 6 महीने वाला जो ड्यूरेशन लिखा हुआ है ना आफ्टर द फर्स्ट एमआई या जो भी कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है, वो हमने इस पे दोनों पे यूनिवर्सली हम अप्लाई करते हैं। इमरजेंसी एक्सट्रैक्शन भी है वो जी, वो भी 6 महीने बाद होगी। इलेक्टिव एक्सट्रैक्शन है जी, वो भी 6 महीने बाद होगी। तो यहाँ पेशेंट क्या करेगा व्हेन ही और शी इज इन सिवियर पेन नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ड्रग्स? तो उसमें आप क्या करोगे? पेशेंट बस वेट करता रहेगा। ट्रस्ट मी, इन मोस्ट केसेस यही पेशेंट आपसे जाके एक क्वैक के पास चला जाएगा, टेक्नीशियन के पास, उससे अपना काम करवा देगा, लेकिन आपके पास दोबारा नहीं आएगा। सो हम इसमें क्यों डर रहे होते हैं? व्हाई इज दिस 6 मंथ का पीरियड हम पे क्यों इतना हावी होता है? आई थिंक इट्स बेटर वी शुड नो कि एक्चुअली कार्डियक अरेस्ट जो है डेंटिस्ट के ऑफिस में कितना कॉमन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन माय एटलीस्ट प्रैक्टिस ऑफ द लास्ट 15 years मैंने कभी नहीं देखा कि कभी भी एक पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ। बट व्हाट डज द एविडेंस से? द एविडेंस सेज के अबाउट इन टर्म्स ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज कार्डियक अरेस्ट रैंक्स, उसकी जो प्रेवलेंस थी दैट वाज अबाउट 0.6 टू 2 to 6%। तो लाइक ये इतना अनकॉमन है कि कार्डियक अरेस्ट आपके चेयर साइड उसमें हो सकता है। ठीक है, तो इट मींस ये हमने एक छोटी सी, आई वोंट से छोटी चीज है, ऑब्वियसली इट्स पोटेंशियली फेटल चीज, लेकिन हमने इसको इतना ऐसा प्रेवलेंट समझा हुआ है कि इसका जो भी मरीज आएगा तो चेयर साइड अगर हमने उसका काम कर दिया तो उसको अल्लाह ना करे कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग वी नीड टू थिंक कि भाई ये चीज वाकई इतनी कॉमन है भी या नहीं, और हम वे भी पेशेंट को डिले कर रहे हैं या ये हम जस्टिफाइड तरीके से इसको वो करें। व्हाट डज द एविडेंस से? तो एविडेंस से ही आप खुद भी अच्छे इन्फॉर्म होगे, आप पेशेंट को भी ज्यादा बेहतर इन्फॉर्म कर सकोगे। सो उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन इशू आ जाते हैं इन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, दैट इज कट ऑफ वैल्यूज फॉर हाइपरटेंशन। तो इसमें इफ यू गो टू द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वेबसाइट, वहाँ आपको मिलेगा कि राउंड अबाउट 160 टू 180 सिस्टोलिक
एंड 100 to 110 डायस्टोलिक जो है, ये इन वैल्यूज में आपने कम से कम काम नहीं करना इलेक्टिव एक्सट्रैक्शन में। इमरजेंसी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, बट अगेन इसमें बहुत आपको मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि याद रखें ऑलरेडी पेशेंट इज इन द स्टेट ऑफ बीइंग अ हाइपरटेंसिव, इमरजेंसी या अर्जेंसी में है, एंड ये बीपी जो है अगर आप और भी शूट कर सकता है, पोटेंशियली बात फेटल जा सकती है। सो इट्स बेटर यू कीप योर सिस्टोलिक डायस्टोलिक वैल्यूज एटलीस्ट इन द रेंज बिलो ऑफ 180/100 से आपके कम होनी चाहिए वैल्यूज। तो उसमें आप फिर भी यू कैन प्रोसीड फॉर एक्सट्रैक्शन, अगेन इमरजेंसी एक्सट्रैक्शन। इलेक्टिव एक्सट्रैक्शंस आपकी इन वैल्यूज में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यू शुड वेट till the hypertension is better controlled. फिर अनदर कॉमन इशू जो होता है फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है कि हम प्लेन एनेस्थीसिया इस्तेमाल करें या हम लोकल एनेस्थीसिया विद एड्रेनलिन इस्तेमाल करें। तो प्लेन एनेस्थीसिया के साथ याद रखें कि प्लेन एनेस्थीसिया के साथ आपकी टॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा बड़े होते हैं, स्पेशली अगर आप लोअर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। और पाकिस्तान में माशाल्लाह हमारे पास एस्पिरेटिंग सिरेंजेस तो हैं नहीं, अगर हैं भी तो लोगों को पता नहीं कि कहाँ से लेनी है। आई पर्सनली बॉट वन, आई वोंट नेम द सप्लायर, बट आई वाज नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट आई गॉट। वो एले की जो बंग होती है उसको एंगेज ही नहीं कर रहा था, सो आई कुड एस्पिरेट कि मैं वाकई इंफीरियर एल्वेओलर आर्टरी के करीब हूँ या करीब नहीं हूँ। सो इट्स बेटर कि आप स्लो इंजेक्शन दें एंड लैंडमार्क्स को फॉलो करें। ऑब्वियसली गिव इट स्लो, जितना स्लो देंगे आपकी टॉक्सिसिटी के चांसेस कम होंगे। लेकिन प्लेन के साथ याद रखें आपको दूसरा इशू ये होता है कि आपका लोकल एनेस्थीसिया इतने टाइम के लिए इफेक्टिव भी नहीं होता। सो इट्स बेटर यू फॉलो द गाइडलाइंस विच आर के यू आपने 2 कार्ट्रिजेस फॉर एवरी 30 मिनट्स, इससे ज्यादा डोज आपने एक्सीड नहीं करना फॉर अ पेशेंट। इट विल बी क्वाइट रेयर इन माई प्रैक्टिस एटलीस्ट, मैंने कभी नोट नहीं किया कि मुझे 2 कार्ट्रिजेस से ज्यादा विद इन 30 मिनट्स देने की जरूरत पड़ी हो। तो ये 0.04 मिलीग्राम चीज जो आप पढ़ते हैं ना बुक्स में, कंटेम्प्रेरी में अगेन लिखी हुई है। सो दिस ट्रांसलेट्स टू 2 कार्ट्रिजेस, क्योंकि आपके एक कार्ट्रिज में 0.018 मिलीग्राम ऑफ एड्रेनलिन होता है। तो 30 मिनट्स में आप 2 कार्ट्रिजेस दे सकते हैं। इट्स परफेक्टली सेफ एंड गुड फॉर द पेशेंट। Acha, the most controversial thing which is regarding cardiovascular diseases is regarding what protocol should we follow regarding their anticoagulation। तो इस पे तीन दवाइयां हैं, या तीन ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करूंगा। एंड अगेन आई वोंट शेयर व्हाट माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मैं आपको एविडेंस बताऊंगा एंड यू शुड लेट द एविडेंस गाइड योर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो बात ये होती है कि यार भाई पेशेंट एंटीप्लेटलेट पे है, शुड वी स्टॉप इट और नॉट। फिर अगर पेशेंट डुअल एंटीप्लेटलेट्स पे है लाइक एस्पिरिन है प्लस क्लोपिडोग्रिल, ऐसे पेशेंट के साथ क्या करना है। और नोक्स जो दवाइयां हैं विच आई होप यू गाइज वुड हैव हर्ड ऑफ, ये कम से कम पिछले 10-15 साल से यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं एंड वेरी फ्यू डेंटिस्ट एंड स्पेशलिस्ट नो अबाउट दीज ड्रग्स, कि एक थर्ड क्लास ऑफ एंटीकोगुलेंट्स जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है। इस पे भी पेशेंट्स होते हैं। तो इन तीनों के रिगार्डिंग हमारे क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। So this is a picture I've taken from the Scottish Dental Clinical Effectiveness Program, जिन्होंने इसके ऊपर गाइडलाइंस जो हैं वो मेंशन की हुई हैं। हर एक की सेपरेट दी हुई है, मैं आपको ये थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूंगा। इन्होंने बेसिकली ब्लीडिंग का रिस्क क्वांटिफाई किया हुआ है इनटू लो एंड हाई। यहाँ आपको लो नजर आ रहा होगा, यहाँ आपको हाई नजर आ रहा होगा। तो लो ब्लीडिंग रिस्क वाले कौन से प्रोसीजर्स हैं? लो ब्लीडिंग रिस्क वाले आपके सिंपल एक्सट्रैक्शन है एंड एक्सट्रैक्शन, जिसमें ऐसा प्रोसीजर जिसमें आप दो से तीन तीन से ज्यादा दांत आप एक वक्त में नहीं निकाल रहे हो, ठीक है। सो दोज आर कंसिडर्ड एज लो ब्लीडिंग रिस्क प्रोसीजर्स। हाई ब्लीडिंग रिस्क आपके कौन से हैं? दोज आर योर सर्जिकल एक्सट्रैक्शंस, या अगर आप एक वक्त में तीन से ज्यादा एक्सट्रैक्शंस कर रहे हो, ठीक है। सो ये याद रखें, ये हर एक उसमें थोड़े बहुत कवर हुए में। तो आपके जो नोक्स हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स। ये बेसिकली आपके डायरेक्ट फैक्टर 10 पे एक्ट करते हैं, उस पाथवे पे एक्ट करते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में जो इनमें से ड्रग्स अवेलेबल हैं वो ये हैं, आपके पास एपेक्सिवान है एंड रिवोसबान के नाम पे आती हैं। ये ज्यादा कॉमन है, आई थिंक जराल्टो के नाम पे आती है कमर्शियली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एनी हाउ आप ऑब्वियसली उसको वो देखोगे तो ये एंड में अगर जबान आ रहा है तो याद रखें कि यू आर डीलिंग विद अ पेशेंट हु इज ऑन डायरेक्ट और नॉवल ओरल एंटीकोगुलेंट्स। तो द ब्यूटी ऑफ दीज ड्रग्स इज कि ये ड्रग्स जो हैं ये सिर्फ 12 आवर्स तक काम करती हैं, अनलाइक योर एंटीप्लेटलेट्स जो 3 से 5 दिन तक या एक हफ्ते तक पेशेंट के प्लेटलेट्स को बिल्कुल वो कर देती हैं, इनएक्टिवेट कर देती हैं।
सो दीज वर्क फॉर 12 आवर्स, सो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को आप ज्यादा से ज्यादा ये कहोगे कि अगर मॉर्निंग डोज है उसको स्किप कर लें, एंड इफ दे आर टेकिंग इट ट्वाइस अ डे, इफ दे आर टेकिंग इट वंस अ डे, तो बस जस्ट स्किप वन डोज, एंड आफ्टर 4 आवर्स ऑफ द एक्सट्रैक्शन हैपनिंग, जब तक आपकी प्राइमरी हीमोस्टेसिस हो जाए, उसके बाद देन यू कैन रीस्टार्ट योर ड्रग। सो दीज आर वेरी गुड इन दिस रिगार्ड कि आपको इनको 3 से 4 दिन या 5 दिन बंद करने की जरूरत नहीं होती। So that is about your dokes or your nokes. What about your vitamin K antagonist? तो इसमें आपकी बुकिश जो रिकमेंडेशन है वो अभी तक वैलिड है। आपके विटामिन के एंटागनिस्ट इज योर वार्फरिन, आपके पास कॉमन होती है, अमूमन ये कमर्शियली मेरिवान के नाम पे आती है। तो वो आइडियली आपको ऑब्वियसली यू हैव टू ऑर्डर द पीटी आईएनआर फर्स्ट, एंड इन्होंने वैसे काफी हाई रखा हुआ है कि वो क्या, इन्होंने 4 को कट ऑफ रखा हुआ है, बट आइडियली इट शुड बी एज क्लोज टू 1 और 2 एज पॉसिबल। तो इसको आपने उस लेवल तक लाना है, एंड इफ ये अगेन आपने डिस्कस करना होगा विद द पेशेंट्स फिजिशियन कि इसको हम रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, बीच में पेशेंट को कोई और ड्रग देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो ये आप खुद से नहीं वो कर सकते, इसमें आपको पेशेंट के कार्डियोलॉजिस्ट के साथ खामखा बात करनी होगी। सो आईएनआर बिलो 3-4 जो है दैट इज आइडियल। तो इन दोनों से ज्यादा आपकी कॉमन ड्रग्स जो होती हैं, दोज आर एक्चुअली योर एंटीप्लेटलेट ड्रग्स। पेशेंट्स हु आर ऑन एस्पिरिन या पेशेंट्स हु आर ऑन क्लोपिडोग्रिल, तो ये लोप्रिन के नाम पे अक्सर आती है, क्लोपिडोग्रिल वगैरह जो है ये अक्सर लोप्लेट, प्लेवेक्स के नाम पे, प्रोग्रिल के नाम पे अक्सर आती हैं। सो एज यू कैन सी, ये आपको कह रहे हैं कि ट्रीट विदाउट इंटरप्टिंग मेडिकेशन। ठीक है। सो personally, I don't go beyond a single extraction in such patients without stopping their medication. मैंने कभी 3 तक इन पेशेंट्स में नहीं की। सर्जिकल एक्सट्रैक्शन भी जब भी करनी पड़ी है तो मैंने सिंगल एक्सट्रैक्शन ही की है, और पेशेंट में फिगर ऑफ 8 स्टिच दे के और उनको फिर 1 घंटा अपने साथ बिठाया है टू चेक के कहीं वो ओवर ब्लीडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें पेशेंट को ब्लीडिंग उनकी कंट्रोल ना आ रही हो, बट दिस इज व्हाट द एविडेंस इज। So you don't need to be stopping these drugs unnecessarily for such patients. याद रखें, when you're stopping these drugs, you are putting the patient at risk, for a very small risk, but इट इज पोटेंशियली फेटल कि उनको एमआई हो जाए या उनको स्ट्रोक हो जाए, बिकॉज आपने उनकी एंटीकोगुलेशन बंद कर दी है। याद रखें, ब्लीडिंग का रिस्क तकरीबन 17 से 20% तक होता है इन पेशेंट्स में। तो ब्लीडिंग आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन एमआई अगर या स्ट्रोक अगर आपकी चेयर साइड हो जाए तो दैट इज फार मोर डेंजरस देन ब्लीडिंग। ठीक है। सो यू हैव टू वे विच थिंग यू आर विलिंग टू sacrifice. Obviously, it's a no-brainer. You can manage bleeding, but आप एमआई और स्ट्रोक को मैनेज नहीं कर पाओगे। अच्छा, सो कमिंग टू द लास्ट टॉपिक विच इज हाउ टू ऑप्टिमाइज हीलिंग। आई नो हम सब वी ऑल वुड विश कि वी हैड द इन्फिनिटी गॉन्टलेट ऑफ थैनोस, कि हम एक स्नैप के साथ ही हम पेशेंट की हीलिंग कर लेते, फॉरेन इम्प्लांट्स डालते या ब्रिज लगा लेते, वट एवर। बट एज यू नो दैट इज ऑब्वियसली नॉट द केस इन रियल लाइफ, एंड दीज आर ऑब्वियसली मूवीज एंड फिक्शन फॉर अ रीजन। सो व्हाट कैन वी डू? सो इसमें एक बड़ा अच्छा चीज मुझे मिली विच मैंने कहा मैं आपके साथ डिस्कस करूं, एंड दैट इज कि क्या हमें कंप्लीट एक्स्ट्रा टूथ एक्सट्रैक्शन की तरफ जाने की जरूरत है, या शुड वी गो फॉर पार्शियल एक्सट्रैक्शन? तो अब इसमें एक बड़ा सिंपल सा वो है सिनारियो है। आपके पास लेट सपोज मैक्सिलरी अपर मोलर है, 3 रूटेड है, मसला पेशेंट के सिर्फ मीजोबकल रूट में है, और हम दांत पूरा का पूरा निकालते हैं। डिस्टल रूट में लेट सपोज इन्फेक्शन नहीं है, पैलेटल रूट में इन्फेक्शन नहीं है, तो दांत भी हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की फेमस कहावत की तरह बोलेगा कि मुझे क्यों निकाला। तो जब मसला एक ही रूट में है तो वाई आरंट वी सिंपली डीलिंग विद दैट वन सिंगल रूट? ठीक है। सो इसमें पार्शियल एक्सट्रैक्शन जो है हमारे पास ऑप्शंस हैं। इट्स अ ब्रॉड टर्म विच कवर्स 3-4 प्रोसीजर्स जिनके बारे में मैं आपके साथ थोड़ी थोड़ी बातें करूंगा रिगार्डिंग देयर सक्सेस रेट, अगेन एज इट इज एविडेंस बेस्ड। सो ये आपको काफी क्लिनिकल एडवांटेजेस देते हैं। नंबर 1, इट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ योर बकल बोन पोस्ट एक्सट्रैक्शन, एंड इट लिमिट्स योर एल्वियोलर रिज रिजॉर्प्शन, देयरफॉर इट मेक्स योर प्रोसीसेस की जो सपोर्ट है, रिटेंशन है, वो ऑब्वियसली ज्यादा हो जाती है।
जब एल्वुलर रिज रिजॉर्प्शन नहीं होगी तो ऑब्वियसली देन अगर आपका पेशेंट इम्प्लांट्स की तरफ जाना चाह रहा है तो उसको इन्वेजिव रिज ऑगमेंटेशन प्रोसीजर्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड लास्टली सॉफ्ट टिश्यू की डायमेंशनल स्टेबिलिटी एंड आपके हाई एस्थेटिक आउटकम्स भी इसकी वजह से आ सकते हैं। सो इफ एनीबडी वांट्स टू गो थ्रू द रिव्यू, दिस इज व्हाट आई हैव कोटेड हियर। एंड अगर आप लोग ये प्रेजेंटेशन चाहते हो, आई विल गिव इट टू डॉक्टर हेरा, वो आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर सकती हैं, तो यू कैन गो थ्रू दीज आर्टिकल्स एट योर लेजर। सो द फर्स्ट टेक्निक जिसका हो सकता है आप लोगों ने नाम सुना होगा, विच इज वेरी पॉपुलर अमंगस्ट इम्प्लांटोलॉजिस्ट, एंड दैट इज द सॉकेट शील्ड टेक्निक। तो सॉकेट शील्ड टेक्निक में बेसिकली क्या होता है कि हम वी रिमूव मोस्ट ऑफ द रूट ऑफ द टूथ, या मोस्ट ऑफ द दांत हम निकाल लेते हैं, लेकिन उसकी सिर्फ बकल वॉल जो है उसको हम छोड़ देते हैं। तो हाउ डू वी डू दिस? इट रिक्वायर्स इट्स ओन एक्सेल साइज बर्स, जो एंड में मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें हमें सिंगल रूटेड टीथ में, यूजली मैक्सिलरी एंटीरियर, मैंडिबुलर एंटीरियर में ये ज्यादा कॉमनली किया जाता है, स्पेशली मैक्सिलरी एंटीरियर में, क्योंकि वहाँ आपके पास ऑब्वियसली हाई स्लिप स्माइल लाइन हो सकती है। तो इट्स बेटर कि यू प्रिजर्व द बोन ओवर देयर, एंड ज्यादा एस्थेटिक्स आपकी अपर जॉ से ही वो होते हैं। सो उसमें जो सिस्टमैटिक रिव्यूज इस सॉकेट शील्ड टेक्निक के ऊपर किए गए, तो दे फाउंड के देर इज a significantly lower rate of horizontal and vertical alveolar bone resorption, better maintenance of the buccal plate, and less marginal bone loss, better aesthetic results than simple implant placement और immediate implants। तो आपको पता है कि बोन रिजॉर्प्शन तब होगी जब वहां दांत नहीं होगा। तो ये इन अ वे हम एल्वुलर बोन के साथ आंख मचोली कर रहे हैं कि भाई कुछ दांत हमने छोड़ा हुआ है और कुछ दांत वहां पड़ा है, विच इज keeping the stimulus there for the alveolar bone to stay there, and वो वहाँ रिजॉर्प्शन नहीं होगा क्योंकि आपके पास बकल बोन मौजूद होगी। याद रखें, बकल बोन मोस्ट कॉमनली ही आपकी फ्रैक्चर होती है इन योर एंटीरियर एक्सट्रैक्शंस, स्पेशली केनाइन वगैरह की रीजन में। तो दिस इज वन वे वेर यू कैन मिटिगेट दैट एंड अवॉइड द फ्रैक्चर ऑफ दिस बोन ऑल टुगेदर। Secondly is hemisection, which I've personally done in quite a few cases, और बड़े मजे के results आए थे, and I thought I would share this with you। तो hemisection में क्या होता है कि like I earlier said, अगर एक ही रूट में मसला है तो हम सारा दांत क्यों निकाल रहे हैं? तो लेट सपोज लाइक इस केस में आपके पास जो है ये लोअर मोलर था, मीजल रूट बिल्कुल ठीक है, डिस्टल रूट में इन्फेक्शन है, और वहाँ इस साइड पे लेट सपोज आपके पास एक पॉकेट भी बनी हुई है। तो वाई रिमूव ऑल ऑफ द सिक्स, कीप द मीजल रूट ओवर हेयर, एंड आप इसके साथ 5 के साथ भी कटिंग करके यहाँ यू कैन मेक नाइस ब्रिज जो पेशेंट को फंक्शनली ठीक ठाक चल जाएगी। इसके ऊपर जो स्टडीज हुई हैं उनमें फॉलोअप का पीरियड जो था दैट वाज अबाउट 5 to 23 years, एंड इन ओवर हाफ ऑफ द स्टडीज जो इस रिव्यू में इंक्लूड हुई थी उनमें सक्सेस रेट वाज ओवर 90%। So that is not something small. It is definitely something you should consider in these patients। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइस, एंड दैट इज कि जिस रूट को आप निकाल रहे हैं तो उस रूट को ज्यादा कट करें एज कंपेयर टू दी अदर वन। एज यू कैन सी हम इसमें मीजल रूट को छोड़ना चाह रहे हैं, तो हमने डिस्टल की तरफ ज्यादा कटिंग की है ताकि ये हमारे पास मीजल जो टूथ स्ट्रक्चर है वो ज्यादा से ज्यादा बच जाए। याद रखें, इसको आपने वैसे भी फ्यूचर में कटिंग करनी होगी क्राउन प्रेप बनाने के लिए, तो इसको अभी से छोटा मत वो करें। ट्राई टू प्रिजर्व द मीजल हाफ एज मच एज यू कैन and cut more through the route which you are going to be sacrificing anyway। अच्छा, फिर एक और प्रोसीजर है हमारे पास रूट एम्प्यूटेशन का। सो रूट एम्प्यूटेशन लाइक आई सेड, मसला अगर एक रूट में है तो व्हाई इज द रेस्ट ऑफ द टूथ सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस? तो इन दिस केस यू कैन सी, मेरा केस नहीं है, ऑलरेडी पुटिंग अ क्लेम डिस्क्लेमर आउट देयर। तो इसमें मीजल रूट में परफोरेशन हुई हुई है, बाकी रूट्स यू कैन सी दीज आर फाइन। तो इसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सारी की सारी मीजोबकल रूट ही काट दी है और बाकी उन्होंने दांत को छोड़ा हुआ है। सो यू टेक अ सिंपल 3 or 4 कॉर्नर फ्लैप आप लें, इस साइड पे उस रूट को एक्सपोज करें जिस तरह इस केस में किया हुआ है, और इसी जगह पे आप विद अ पर यू कैन कट दिस रूट इंटायरली, रिमूव इट, एंड दैट इज दैट। ठीक है, तो यू कैन सी क्वाइट क्लियरली यहाँ मीजोबकल MB1 है, MB2 और हेयर। इसमें आपको एपिसेक्टमी की तरह रेट्रोग्रेड फिलिंग करने की यूजली जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस पोर्शन ऑफ द रूट में एज यू नो एपिकल रेमाए वगैरह नहीं होते, एपिकल डेल्टा नहीं होता, तो उसको सील ऑफ करने की आपको यूजली जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके ऊपर जो सिस्टमैटिक रिव्यू हुआ था उसमें इंडिविजुअल डेटा शोड दैट
ऐसे केसेस में रूट रिसेक्शन भी इसको कहते हैं, RR, रूट एम्पुटेशन या रूट रिसेक्शन, तो उसमें मीन सर्वाइवल रेट ऑफ सच टीथ वाज ओवर 87.2%. सो दैट्स अ वेरी हाई परसेंटेज. तो इट मींस इट इज अ प्रिडिक्टेबल ऑप्शन फॉर केसेस जिसमें आप सारा दांत फिर रिमूव नहीं करना चाहते. ठीक है. Another technique is called root submergence. तो अब इस केस में अगर आप केस ए में देखें, lateral incisor है अपर, इसमें उनको पेशेंट हैज क्वाइट अ सिग्निफिकेंट रेडियोल्यूसेंसी इन्वॉल्विंग द क्राउन. अब आप यही सोचोगे कि यार इस क्राउन को क्यों बचाया जाए, इसमें अगर RCT कर भी लें तो फिर क्राउन के लिए जब कटिंग करेंगे तो रिमेनिंग क्राउन और भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, बस इसको निकाल ही लेते हैं. बट इंटीरियर एरिया है, हाई एस्थेटिक्स वाला एरिया है, सो व्हाट कैन यू डू इन दिस? So what you can do in this is you just remove the crown and you reduce the crown. यहाँ अगर आप इसको कट कर लें at CAJ level, तो राउंड बर के साथ you reduce it 2 to 3 mm below the alveolar crest, and आप इसको primarily अगर close कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है. If not, it will close secondarily over a period of maybe 3 to 6 weeks, और आप इसके ऊपर अपनी ब्रिज बाकी आराम से बनाएं. जल्दी बन जाएगी एज कम्पेयर टू वेटिंग फॉर कंप्लीट हीलिंग टू टेक प्लेस, और हो सकता है इसमें फिर बकल बोन फ्रैक्चर भी हो जाए. तो इसमें यह होगा कि फर्दर रिजॉर्प्शन नहीं होगी, आपके क्राउन के अंदर ब्लैक एरियाज नहीं बनेंगे. और इसमें देखिए उन्होंने रूट कनाल भी की हुई है. ज़रूरी नहीं है रूट कनाल करना. एज पर दिस सिस्टमैटिक रिव्यू वाइटल रूट भी आप छोड़ सकते हैं, और लो इसमें इन्फेक्शन का रिस्क होता है, तो यू कैन गो फॉर रूट कनाल एंड ऊपर से आप इसको प्लग कर लें. तो विद एनी रिस्टोरेटिव मटेरियल, अगेन दैट्स नॉट माय स्पेशलिटी, तो पूछ आप उन्हीं से सकते हैं कि शुड वी गो फॉर GIC और MTA और वट एवर. बट एनी हाउ इन्होंने जो स्टडीज वो की, तो उसमें एनिमल्स में जो थी उनमें 86.8% तक रूट सबमर्ज रही, और ह्यूमंस में अबाउट 75% तक रूट सबमर्ज रह गई थी. सो इट मीन्स इट इज अगेन क्वाइट अ प्रिडिक्टेबल ऑप्शन जब आप फुल एक्सट्रैक्शन की तरफ ना जाना चाहो. The last thing which I'll cover today is your flapless sectioning. दांत अब फौरन खामखा निकालना है, कोई और चारा नहीं है. दोनों रूट्स में इन्फेक्शन है, दांत मोबाइल है या क्राउन बिल्कुल खत्म है, जो भी है, तो यू शुड ट्राई टू गो फॉर फ्लैपलेस सेक्शनिंग. हमें बुक्स में या हमें अंडर ग्रेजुएट में क्या पढ़ाया गया होता है कि जब भी सेक्शनिंग करनी है बच्चे, यू हैव टू टेक अ फ्लैप. सो the problem with taking a flap is कि आप obviously you're increasing the morbidity of that area. Release incisions आप देते हैं वो अच्छे खासे खुद से पेनफुल होते हैं पेशेंट को, और रिलीज फ्लैप लेने से याद रखें 10-15% बोन लॉस होता है खामखा. So what you do is instead of taking a flap, you अगर let's suppose RCT treated दांत है और उस तरह आपको GP कोन्स हर एक कनाल के सेपरेटली नजर आ रहे हैं, so just run your TR11 और a straight cylindrical burr, रन करें, मेक योर टी शेप्ड ग्रूव्स एंड एंगेज योर एलिवेटर्स, और आपको फ्लैप लेने की जरूरत नहीं होगी, एंड यू कैन होपफुली सेफली एक्सट्रैक्ट सच टीथ. अब आपके पास अगर लेट्स सपोज RCT दान नहीं और आपको पता नहीं लग रहा है कि बाइफर्केशन एग्जैक्टली मौजूद कहाँ है, तो व्हाट यू कैन डू इज दांत की कोरोनेक्टमी कर लें, पल्प चेम्बर को एक्सपोज करें. पल्प चेम्बर को एक्सपोज करें, रन योर बर बिल्कुल पैरेलल, डिवाइड द टूथ इन हाफ, और उससे यू कैन क्या कहते हैं, आप होपफुली रूट्स को ठीक से बाइफरकेट कर दिया होगा और आप इसको निकाल सकोगे. ठीक है. यही चीज आप इवन सिंगल रूटेड टीथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज समथिंग आई हैव बीन टीचिंग माय अंडर ग्रेजुएट्स फॉर द पास्ट 1 ईयर, क्योंकि हम यही समझते हैं कि चलो मोलर्स तो स्प्लिट हो जाएंगे, सिंगल रूटेड दांत के साथ क्या करें. तो सिंगल रूटेड दांत की स्प्लिटिंग के लिए लाइक द सॉकेट शील्ड यू नीड योर एक्सेल साइज बर्स. और इनको याद रखें, आपने इनको लाइक मैंडिबुलर मोलर्स, इनको आपने मीजियो डिस्टली सॉरी इनको बकोलिंगुअली आपने स्प्लिट करना होता है. तो यू मेक अ डीप ग्रूव, यू नीड वेरी लॉन्ग बर्स फॉर दिस. ये जो यहाँ कमर्शियली अवेलेबल नहीं होती, ये मैंने ऑर्डर की थी टीमो के थ्रू. दीज आर योर एक्सेल साइज बर्स, ये तकरीबन 27 mm लेंथ की हैं. तो ये तकरीबन आपके रूट के एपेक्स तक पहुंच जाती हैं. तो यू डोंट नीड टू गो ऑल द वे थ्रू, एपिकल 1/3 तक भी आप पहुंच जाए, दैट इज मोर देन इनफ. बीच में आप एक एलिवेटर या पेरियोटोम्स वगैरह डालें, एंड उससे यू कैन रिमूव द रूट विदाउट गोइंग फॉर अग्रेसिव सर्जिकल एक्सट्रैक्शन इन सच केसेस. दिस वॉज द बर. अच्छा, अभी मैंने पेरियोटोम्स वगैरह की बात की, तो ये भी मैं जरा आपको जल्दी से दिखा देता हूँ. पेरियोटोम्स लेक्सेटर्स जो हैं, दीज आर योर ए ट्रॉमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डेंटल एक्सट्रैक्शन. दीज आर बेसिकली वेरी सेरेटेड एंड वेरी फाइन टिप्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिनको आपने एलिवेटर्स, स्ट्रेट एलिवेटर्स की तरह यूज नहीं करना होता.
इसको अभी समझाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, सो आई गिव यू अ रेफरेंस फॉर अ कोर्स विच आई डिड। इट्स अ फ्री ऑनलाइन कोर्स ऑन एट्रोमेटिक एक्सट्रैक्शन, लिंक मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। तो इनके साथ बेसिकली आपने अपनी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं विद मिनिमल ट्रॉमा एंड होपफुली रिक्वायरिंग मिनिमल फोर्स। द ओनली डाउन साइड टू दीज इंस्ट्रूमेंट्स इज अगेन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, हो सकता है मे बी रॉन्ग, आप लोग यूज करोगे, आप लोग को ज्यादा बेहतर पता लगेगा कि these instruments don't typically work well with bulbous roots और very curved roots। उसमें अक्सर ये आपको फिर भी मजबूरन फुल सर्जिकल एक्सट्रैक्शन की तरफ ये शायद आपको लेके जाएंगे फिर भी। The last thing which you can do for optimizing your healing is using platelet-rich fibrin and your growth factors. So इस पे एक systematic review which I'm sharing with you is that अगर फुल दान निकालना भी है, तो अगर आप पोस्ट ऑप पेन वगैरह कम करना चाहते हैं, सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, तो यू कैन पैक इट विद platelet-rich fibrin and you don't need फैंसी मशीन्स फॉर दिस। सिंपल ब्लड का जो सेंट्रीफ्यूज होता है जो आपके अक्सर लैब्स में मौजूद होता है, यू कैन बाय दैट एंड उसमें आप इसको वो कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो इसमें अच्छा सॉकेट फिल अक्सर देखा गया है एज कम्पेयर टू पेशेंट जिनमें आप कोई भी वो नहीं करते, इंटरवेंशन नहीं करते। सो दिस इज समथिंग यू कैन यूज टू प्रमोट योर हीलिंग एंड डिक्रीज द पेशेंट्स पेन फॉलोइंग एक्सट्रैक्शन। The last thing that I will share is that याद रखें कि पेशेंट की पोस्ट ऑप पीरियड को ऑप्टिमल बनाने के लिए what you need to do is have very good anesthesia, you have very good analgesia। तो पेशेंट की आपने बहुत अच्छी एक्सट्रैक्शन की है, लेकिन अगर आप उसको अच्छा एनाल्जीसिया नहीं लिख के दे रहे हो, तो याद रखें कि पेशेंट विल कम टू यू कंप्लेनिंग एनीवे। क्योंकि याद रखें ये जो आपके ट्रोमेटिक एक्सट्रैक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके साथ आपका एक्सट्रैक्शन का टाइम बढ़ जाता है इन मोस्ट केसेस, इफ स्पेशली इफ यू आर नॉट अ सर्जन, तो आपका टाइम यूजुअली बढ़ जाएगा। मेरे जितने पेरियो के स्टूडेंट्स थे, टीएमओस थे, व्हेन आई वाज स्टार्टिंग टू यूज दीज इंस्ट्रूमेंट्स, वो मुझे कहते थे कि सर एक बात याद रखें कि इससे आपके एक्सट्रैक्शन का टाइम 30 से 40 मिनट तक बढ़ जाएगा। तो बाकी बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये एक इसका मसला है। तो वेन एवर आई यूज देम आई वुड प्रॉब्ली अग्री विद देम कि इस एक्सट्रैक्शन का टाइम आपका बढ़ जाता है, क्योंकि इट्स अ पेशेंट गेम। You're not expanding the socket as such, you are just relying on the wedge principle of these instruments। So टाइम आपका लगेगा एक्सट्रैक्शन में, ये बात याद रखें। ठीक है। अच्छा, the last thing, optimal analgesia, which I wanted to share with you guys, this is again a systematic review given in the Saudi Journal of Anesthesia। तो इसमें बड़ी अच्छी मुझे indications मिली इस टेबल में, which I thought I'll share with you guys, and that is cardiovascular patients जो आपके हों, कोशिश करें उनमें पैरासिटामोल या कॉक्स 2 इनहिबिटर्स की तरफ ज़्यादा जाएं। एनसेड्स आप लिख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म की तरफ ना जाएं। यू कैन राइट आइबुप्रोफेन, बट अगेन ट्राई टू राइट इट इन अ रिड्यूस्ड डोज। हम टिपिकली बस यही 400 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम लिख लेते हैं। याद रखें आइबुप्रोफेन डज नॉट वर्क फॉर मोर देन 4 to 6 hours एंड इसका मैक्सिमम डोज इज 3200 मिलीग्राम्स पर डे। तो हम 1200 में भी लिख रहे हैं, इवन दिस इज क्वाइट इनफ। बट याद रखें आपके पेशेंट्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स के साथ भी हो सकता है आ जाएं। तो इन दैट केस अगर आप देखें डायबिटिक पेशेंट भी अगर है या जनरल एल्डरली पेशेंट्स भी जो हैं, तो इन ऑर्डर कि उनका मैदे के जो भी मसले हैं वो एग्जैसरबेट ना हो, स्टिक टू पैरासिटामोल एंड स्टिक टू शॉर्ट टर्म यूज ऑफ कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। कॉक्स 2 इनहिबिटर्स में याद रखें लॉन्ग टर्म यूज के साथ हायर चांसेस ऑफ एमआई रिपोर्ट हुए हैं। तो ये कार्डियोवास्कुलरली दीज आर नॉट वेरी सेफ, बट शॉर्ट टर्म 3 days 4 days के लिए आप लिख रहे हैं तो दीज आर जनरली फाइन। यहाँ पाकिस्तान में दे आर अवेलेबल सेलिकॉक्सिब के नाम पे, कमर्शियल ये सॉरी जेनेरिक नेम है, ट्रेड नेम इनका सेलबेक्स पे नाम पे आई थिंक आती है। सो इन अ डोज ऑफ अबाउट 200 मिलीग्राम बीडी या 100 मिलीग्राम बीडी आप भी पेशेंट्स को लिख सकते हैं। बीडी डोजेज पेशेंट्स के लिए भी ज़्यादा सूटेबल होती है। देर हमारे एल्डरलीज ऑलरेडी इतने दवाइयाँ खा रहे होते हैं कि अगर हम उन्हें कहें कि ये एक और दवाई है जो आपने 4 से 6 घंटे बाद लेनी है, हो सकता है वो उस दवाई को इस्तेमाल ही ना करें। इसके अलावा पैरासीटामोल हम अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसको आप मैक्सिमम डोज में लिखा करें। एक टैबलेट 500 मिलीग्राम की होती है, यू कैन राइट 2 टैबलेट्स एवरी 6 आवर्स। सो मैक्सिमम डोज वुड बी 2+2+2+2। तो मैक्सिमम डोज दिया करें। गैस्ट्रोइंटेस्टिनली और बाकी ड्रग्स के साथ भी इसके इंटरेक्शंस कम होते हैं, तो देर फार मोर सेफर टू यूज देन योर NSAIDs।
So thank you for bearing me. I'm sorry if I went over the limit, but इसमें चीज़ें इतनी थी कि वो मुझे कवर करनी पड़ी थी. होपफुली एंड में आप लोगों का ये हाल नहीं बन गया होगा कि आप सारे लैपटॉप्स के साथ देख के सो रहे होगे और आपकी उम्रें भी जो है सारी जीeriatric पेशेंट्स तक पहुंच गई होंगी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग मी, लिसनिंग टू मी, एंड आई वुड लव इट अगर क्वेश्चंस हों तो उस डिस्कशन से और भी मज़ा आ जाएगा. We do have few questions. It was a very insightful session. I truly enjoyed the session. It was really good. So there's this question, what measures can be taken to promote optimal healing and reduce post-operative complications in elderly patient? ये like I've said, try to go for atraumatic extraction techniques की तरफ जाएं. Periotomes are not horribly expensive instruments. आपको 5,000 से लेके 14,000 15,000 तक इसका एक सेट मिल जाता है. इट्स यूजली a set of 7. तो आई वुड रिकमेंड यू डू दैट. एंड सेकेंडली आई वुड रिकमेंड कि आप फ्लैपलेस सेक्शनिंग की तरफ जाएं. तो इससे आपके काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेशंस और जो पोस्ट ऑप मॉर्बिडिटी होती है वो आपकी काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी. इवन इफ़ यू आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स पीआरएफ वगैरह, अगर आप नहीं कर सकते, नो नॉट अ प्रॉब्लम. ये दो काम भी अगर आप कर लें तो आई थिंक उससे अच्छी खासी वो हो जाएगी. एंड ऑब्वियसली गुड एनेस्थीसिया, गुड एनाल्जेसिया पेशेंट्स को खामखा लिखा करें. तो ये तीन चीज़ें तो मैं आपको कम से कम रिकमेंड करूंगा. इफ़ यू आर नॉट वेरी फीलिंग वेरी कंफर्टेबल डूइंग द पार्शियल एक्सट्रैक्शन थेरेपी मेजर्स जो मैंने आपको बताए, तो दी ये तीन चीजें भी अगर आप कर लें, आई थिंक योर एल्डरली पेशेंट्स विल बी वेरी हैप्पी विद यू. अच्छा, Okay. इसके So another हम्म. question is, why with plain anesthesia chances of toxicity increases more? Can you elaborate a bit on that? जी, प्लेन एनेस्थीसिया में क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्टर नहीं होता तो वो वहाँ लोकल एनेस्थीसिया की एब्जॉर्प्शन जो है कम नहीं हो रही होती. एड्रेनलिन आपका क्यों हम रिकमेंड करते हैं इन पेशेंट्स में, बिकॉज लोकल एनेस्थीसिया जहाँ भी डिपॉजिट हुआ है तो वहाँ विद एड्रेनलिन वहाँ वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, तो उस एरिया की